بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ کی زندگی ایک ایسی کہانی ہے جو پہلے ہی لکھی جا چکی ہے اور آپ اس میں بس ایک کردار ہے؟ کیا یہ سوال آپ کے دماغ میں گونجتا ہے؟ اگر سب کچھ طے ہے تو پھر میری دعاؤں کا کیا مطلب؟ ایک عجیب سی بے بسی محسوس ہوتی ہے، ایک ایسے کل کو دیکھتے ہوئے جو شاید آپ نے چنا ہی نہیں۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ اسلام آپ کو ایک ایسی قوت دیتا ہے جو اتنی گہری ہے کہ وہ آپ کی قسمت سے ٹکرا سکتی ہے، ایک ایسی طاقت جو اسے لے سکتی ہے جو لکھا جا چکا ہے اور اس پر دوبارہ لکھنے کی ہمت رکھتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک سچی، دل سے نکلی ہوئی دعا کی عظیم طاقت کی۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہم ایک بند کتاب کے کردار ہیں، ایک ایسی کہانی جس کا انت پہلے سے ہی طے کر لیا گیا ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن جب چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسا ہم چاہتے ہیں تو دل کے کونے سے ایک آواز آتی ہے، شاید یہی نصیب تھا۔ یہ لفظ نصیب کبھی کبھی ایک بھاری زنجیر جیسا لگنے لگتا ہے۔ ہم کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اس کا نصیب کتنا اچھا ہے، اور جب ہم خود ناکام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میرا نصیب ہی خراب ہے۔ اس سوچ کا سب سے پہلا حملہ ہماری عبادت پر ہوتا ہے۔ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہے تو پھر یہ ہاتھ اٹھا کر مانگنے کا کیا فائدہ؟ یہ گڑ گڑانے کا، یہ رونے کا کیا مطلب؟ یہ شک، یہ سندیہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ ایک دیوار بن جاتا ہے۔ ہم امید کھونے لگتے ہیں، اور جب امید جاتی ہے تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس کی آواز کا اب کوئی اثر نہیں ہونا۔ وہ قسمت کے آگے آتم سمرپن کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا راز ہے، ایک ایسا بندو جسے سمجھ لینے سے ایمان کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے۔ ہم دعا کو اکثر صرف ایک انورودھ سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام نے دعا کو مومن کا ہتھیار کہا ہے۔ ایک ہتھیار، اور ہتھیار انورودھ نہیں کرتا، ہتھیار مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں لاچار نہیں بنایا، اس نے ہمیں تقدیر کا قیدی نہیں بنایا، بلکہ اس نے ہمیں تقدیر کے اس سمندر میں دعا نام کی ایک کشتی دی ہے، اور اس کشتی میں ہماری کوشش کا پتوار ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو لکھ دیا گیا بس وہی ہو کر رہے گا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسے دوبارہ لکھنے پر بھی قادر ہے، اور اس نصیب کو بدلنے کا راستہ بھی اسی نے بتایا ہے، اور وہ راستہ ہے الدعا۔ یہ صرف کوئی جذباتی بات نہیں ہے، اس کی بنیاد اسلام کی سب سے پرامانک شکشاؤں پر ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف فرمایا، کوئی چیز اللہ کے فیصلے، تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ مسند احمد، ابن ماجہ، ترمذی۔ یہ حدیث ہماری سوچ کے بند دروازوں پر دستک دے رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ دعا صرف سفارش نہیں ہے، یہ ایک سکریہ شکتی ہے۔ ایک اور حدیث اس تصویر کو اور صاف کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ان چیزوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو ہو چکی ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ابھی نہیں ہوئیں۔ بے شک دعا آنے والی مصیبت سے ملتی ہے، اور قیامت کے دن تک اس سے کشتی کرتی رہتی ہے۔ ذرا اس درشیہ کی کلپنا کیجیے، آپ کی دعا آپ کے رب کی طرف سے آنے والی کسی آزمائش سے آسمانوں میں کشتی کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو آپ کی طرف سے لڑی جا رہی ہے، صرف اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کو دل سے پکارا۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر دعا تقدیر بدل سکتی ہے تو کیا اس سے اللہ کا علم بدل جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ودوان اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے
तकदीर के दो प्रकार बताते हैं। एक है तकदीर मुबरम, यानी वो अंतिम फैसला जो अटल है, जो कभी नहीं बदलता, जैसे मौत का वक्त, सूरज का मशरकत से निकलना। ये अल्लाह का वो फैसला है जिसे कोई चीज नहीं बदल सकती। और दूसरी किस्म है तकदीर मुअल्लक, यानी वो सशर्त फैसला जो किसी शर्त से जुड़ा है। ये वो लिखा है जो फरिश्तों के पास रिकॉर्ड में होता है। जैसे लिखा हो कि किसी शख्स की उम्र 60 साल है, लेकिन अगर वो अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखेगा तो 70 साल हो जाएगी। या लिखा हो कि फलां शख्स पर एक मुसीबत आएगी, लेकिन अगर वो दुआ करेगा तो वो मुसीबत टल जाएगी। हमारी दुआएं, हमारे अच्छे काम इस परिवर्तनशील या मुअल्लक तकदीर के क्षेत्र में काम करते हैं। अल्लाह को अपने अज़ल के इल्म में यह पहले से पता होता है कि आप दुआ करेंगे और उस दुआ की वजह से आपकी तकदीर बदलेगी। तो आपकी दुआ भी अल्लाह की योजना का ही एक हिस्सा है। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक समंदर है, तकदीर मुबरम, और उसमें आपकी कश्ती है जिसका रुख एक तरफ है, लेकिन आपके पास एक पतवार, दुआ है। आप उस पतवार को इस्तेमाल करके अपनी कश्ती का रुख मोड़ सकते हैं। आप समंदर को नहीं बदल रहे, आप उस समंदर के अंदर अपने सफर की दिशा बदल रहे हैं। तो ऐसी दुआ कैसे मांगी जाए जो किस्मत का रुख मोड़ दे? ये कोई जादू नहीं, बल्कि अपने रब से दिल से बात करने का एक अदब है, एक सलीका है। पहली शर्त है यकीन। इस अटल भरोसे के साथ दुआ करें कि आप जिससे मांग रहे हैं वो हर चीज पर कादिर है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। जब दुआ करें तो डर और शक के साथ नहीं, इस यकीन से मांगे कि मेरी आवाज सुनी जा रही है और जरूर कबूल होगी। दूसरा अदब है दुआ का तरीका। दुआ शुरू करने से पहले अल्लाह की तारीफ करें, उसके खूबसूरत नामों का वसीला लें। फिर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, क्योंकि बताया गया है कि हर दुआ रोकी जाती है जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजा जाए। इसके बाद पूरे दिल से आजीजी के साथ अपनी हाजत पेश करें और आखिर में फिर से दुरूद पढ़कर अपनी दुआ को खत्म करें। तीसरी और सबसे अहम चीज है सब्र और इस्तिकामत, यानी धैर्य के साथ मुसलसल लगे रहना। कभी ये मत सोचें कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही। अल्लाह आपकी दुआ को 3 तरीकों से कबूल फरमाता है। या तो वो चीज आपको फौरन दे दी जाती है, या उसे कुछ वक्त के लिए विलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि अभी आपके लिए बेहतर नहीं। या तीसरा, उस दुआ के बदले में आप पर आने वाली कोई मुसीबत हटा दी जाती है। और अगर दुनिया में कुछ ना भी मिले तो वो दुआ आपके लिए आखिरत का खजाना बना दी जाती है। इसलिए मांगना कभी मत छोड़ें। अल्लाह को अपने बंदे का गिड़गिड़ाना बहुत पसंद है। आप एक शख्स की कल्पना करें जो सालों से बेऔलाद है। हर डॉक्टर ने कह दिया है कि कोई मौका नहीं। हर रिश्तेदार उम्मीद दिलाकर थक चुका है। अब उसके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि उसके नसीब में औलाद लिखी ही नहीं है। वो बिल्कुल मायूस हो चुका है। एक रात वो तहज्जुद में उठता है, सारी दुनिया सो रही है और वो अपने रब के सामने सजदे में है। उसके पास अल्फाज नहीं है, सिर्फ आंसू है। वो रो रहा है और अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। वो कहता है, या रब, मैं नहीं जानता मेरे नसीब में क्या है। सब कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तू तो कुन फयकून का मालिक है। तू तो वो है जो जकरिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में याह्या अलैहिस्सलाम जैसा बेटा देता है। तू तो हर चीज पर कादिर है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे मांगता हूं, मुझे खाली हाथ मत लौटा। वो ये दुआ रोज करता है,
हर नमाज में, हर सजदे में। उसका दिल यकीन से भर जाता है कि उसका रब उसकी सुन रहा है। फिर महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, और एक दिन वो खबर आती है जिसका उसने सोचना भी छोड़ दिया था। अल्लाह उसे औलाद की नेमत से नवाज देता है। लोग इसे एक चमत्कार कहते हैं, लेकिन ये चमत्कार उसकी दुआओं की उस कुश्ती का नतीजा था जो वो उसकी किस्मत से लड़ रही थी। ये उसके यकीन का फल था। ये इस बात का जिंदा सबूत था कि जब आप लोगों से उम्मीद तोड़कर सिर्फ अल्लाह से जोड़ लेते हैं, तो वो आपके टूटे हुए नसीब को भी जोड़ देता है। आज इस वीडियो के बाद 1 मिनट के लिए रुकें, अपने हाथ उठाएं और उससे बात करें। अपने सारे डर, अपनी सारी परेशानियां, अपनी हर ख्वाहिश उसके सामने रख दें। पूरे यकीन के साथ मांगे और फिर सब्र के साथ बेहतरीन नतीजे का इंतजार करें। इस पैगाम को उस इंसान के साथ जरूर साझा करें जो अपनी जिंदगी में मायूस है, जो ये सोचता है कि उसकी कहानी का अंत लिखा जा चुका है। उसे याद दिलाएं कि उसकी कहानी का लेखक अभी भी उसकी दुआ का इंतजार कर रहा है। और ऐसे ही ईमान को ताज़ा करने वाले अनुस्मारक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर उम्मीद और यकीन का ये सफर जारी रख सकें। याद रखिए, आपका नसीब लोहे का कोई बंद पिंजरा नहीं है। ये एक रास्ता है, और दुआ वो कुव्वत है जो आपको एक बेहतर मंजिल की तरफ ले जा सकती है। मायूस क्यों है? आपने उससे मांगा है जो नामुमकिन को मुमकिन करने पर कादिर है। आपने किसी इंसान से नहीं मांगा, आपने तो अल्लाह से मांगा है। जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है, वो दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। बस शर्त इतनी है कि आप पूरे यकीन से उसे पुकारें। आपका रब आपकी दुआ का इंतजार कर रहा है। और आखिर में, मैं अपने रब से हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर सब्सक्राइबर और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दिल से दुआ करता हूं। या अल्लाह, जो भी हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं, उन्हें खाली ना लौटा। या रब, जो बीमार हैं, उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उनके लिए आसानियां पैदा कर दे। जो परेशान हाल है, उनके दिलों को सुकून दे। या अल्लाह, हम सबको अपनी रहमत के साए में रख, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।